خدا ان کا کلام سننے اور پڑھنے والے آپ تمام کی خدمت میں ادب کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ان کے کلام میں سے جب بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ صرف ہماری ہی نہیں بلکہ جہاں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی حوصلہ افزائی اور ایمان بڑھنے کی بات ہے۔ آج جب ہم خداوند کا کلام دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہودا اکثر یوتی اور ہم میں کیا فرق ہے۔ یہودا اکثر یوتی جس نے یسوع کو پکڑوایا، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ چند باتیں قابل غور ہیں جو کلام مقدس میں درج ہیں، ہم انہیں پڑھے دیتے ہیں پہلے تاکہ کوئی کسی کو ٹھیس نہ لگے، ہم کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ خداوند کے کلام کو پھیلانے آئے ہیں۔ پہلے آتی ہے مساوات، یکسانیت، مساوات۔ بھائی اور بہنوں، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے فرض۔ بہت سارے لوگ فرضی طور پر جو کام بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ یہ کسی کے حق کو بجا لا رہے ہیں، کسی کا یہ حق بنتا ہے جو ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ حق ادا کرتے ہیں کیونکہ ان پر فرض بن جاتا ہے۔ جو فرض کسی نے ادا ان کے لیے کیا تو یہ اب ان کا حق بن جاتا ہے کہ وہ اسے دیں۔ لہذا دینا اور لینا، فرض جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور حق بھی دیا جاتا ہے۔ فرض ادا بھی کیا جاتا ہے اور فرض جو ہے وہ لیا بھی جاتا ہے۔ تو لہذا ہم یکسانیت کے طور پر خداوند کے کلام میں سے رومنز چیپٹر 3 verse 29 to 31۔ First of all, unity and equality. The equal person is those who always notify himself responsibility and to rights to give somebody and to right take from somebody. So we are going to read it, all these things from Romans chapter 3 verse 29 to 31. So we will see what Paul says to Romans, because as I am noticing it now, our culture, our rules and regulations in the world are similar to Romans. گو ہم فضل کے تحت ابھی موجود ہیں لیکن کرتے ویسے ہی ہیں جیسے رومنز کرتے تھے۔ Though we are in a grace of God, but still we act like Romans they did it. Anyhow, پڑھتے ہیں تیسرا باب، اس کی 29ویں آیت۔ لکھا ہے کہ کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی ہے یا غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔ نامختون کون ہے؟ جو خدا کا کہنا نہیں مانتے، اور دوسرا اس کی جو وضاحت ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور مختون وہ ہیں جو خدا کا کہنا مانتے ہیں۔
हर तरीके से। इसीलिए इब्राहिम ने मोजेस ने खुदा का कहना मानते हुए अपने बेटे के और बच्चों के सरों के खतने करवाए। लिहाजा ये बात फर्क है। लिहाजा आगे चलते हैं। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम करते हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि अगर हम ईमान रखते हैं कि ईमान के वसीले से हम रास्तबाज ठहरते हैं तो हम शरीयत को अधूरा छोड़ देते हैं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। कौन सी शरीयत? जो जिस्म से अदा की गई, यस्सु की। यस्सु ने अब उस शरीयत को जो खुदा की तरफ से थी और इंसान को दी गई, मोजेस को दी गई, और मोजेस ने अपने जिस्म से नहीं बल्कि अपने लबों से अदा की। इब्राहिम को दी गई, इब्राहिम से ने भी अपने मुंह से नहीं बल्कि उस ईमान के वसीले से अपने जिस्म से अदा की। और अब यहां देखें, उस जिस्म की अदायगी भी उसने अदा नहीं की, वो भी खुदा ने की। क्या किया कि इब्राहिम ने सिर्फ ईमान रखा, जो कि चौथा बाब उसकी 3री आयत में लिखा है। बल्कि मैं दूसरी से पढ़े देता हूं, क्योंकि अगर इब्राहिम अमाल ही से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं, क्योंकि उसने किया नहीं। जब उसने कहा कुर्बानी दे, उसने कुर्बानी के लिए ईमान रखा खुदावंद पे, लेकिन किया नहीं, कुर्बान नहीं किया, क्योंकि खुदावंद ने उसे रोक दिया था उस ईमान के वसीले से जो खुदा उसे परखना चाहता था। तो लिहाजा वो ईमान के वसीला से रास्तबाज गिना गया जो खुदा पे वो रखता था, और वो खुदा ने उसको ईमान दिया था। लिहाजा इसी तरह गैर कौमों के लिए भी, और मख्तूनों और नामख्तूनों के लिए भी, और अपनी कौमों के लिए जो कौमी कहलाते हैं, वो अगर खुदावंद पर ईमान रखते हुए वो हक अदा नहीं करते, मैं हक की और फर्ज की बात कर रहा था, वो फर्ज अदा नहीं करते, तो उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो खुदा के बादशाहत में दाखिल हो। भले वो कितना भी वो काम कर लें, कितना भी बोल लें, कितना भी वाज कर लें, कितनी भी किताबें लिख लें, कितना भी इल्म पढ़ लें, जब तक वो फर्ज अपने जिस्मों से अदा नहीं करते, उस तरह उनका जो हक है वो अदा नहीं होता। लेकिन मिरास के तौर पे जो हमें चीज मिली है खुदावंद यीशु के वसीले से, वो हमने हासिल करनी है। किस तरह? अपना फर्ज अदा करके। और इस वजह से वो फर्ज जो है वो पूरा नहीं होता जब तक कि हम ईमान नहीं रखते। देखिए, जो फर्ज यहां पे दिया गया था कि तू इसे अदा कर, वो उसने नहीं किया, बल्कि खुदा ने उसके लिए बर्रा काटा, उसके कपड़े सिए और उसको दिया। इसलिए ईमान के वसीले से इब्राहिम जो है वो मुबारक कहलाता है। लिहाजा आगे चलते हैं। चाहत। अब चाहत से पहले मैं बयान करता चलूं, जो कि हमने पहले अनुमान चुना था, यहूदा अक्सरियती से हम कितने मुख्तलिफ हैं, हमें क्या फर्क है। अब यहूदा अक्सरियती के बारे में आ जाएं। पहले तो मैंने पुराने शरीयत से आपको बताया, रोमियो के खत से, पौलुस रसूल के खत रोमियो के नाम से बताया, और अब मैं यहूदा अक्सरियती के बारे में बताता हूं कि वो अपने आप को खुदा बाप के यकसा समझता था, यकसा समझता था, और उस मसावात को उसने जो खुदावंद के हक के बारे में कही गई थी उसको वो ना समझा, और क्या किया, यीशु को रोमन्स के हवाले कर दिया।
अब हम क्या करते हैं, हम यकसानियत तो देखते हैं लेकिन उस मसवात को भूल जाते हैं जो खुदावंद की है। हम लोग खुदावंद के पैरों कहलाते हैं, उसके साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ चलते हुए अपने जिस्म में वही किरदार अदा कर जाते हैं जो नासमझी के होते हैं, जिस तरह यहूदा अक्सरियती ने की है। अब देखते हैं चाहत के बारे में, चाहत के बारे में जो कि चौथे बाब, रोमियो का खात उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। लॉजिक, अगर मुझे इसमें मसावात का फर्क जाहिर नहीं है तो मैं बेदीन आदमी के साथ जिस तरह उसका ईमान है उसके साथ ठहर जाता हूं, उसके साथ बेदीन वाले के साथ मैं मुंसलिक हो जाता हूं और अपने आप को अटैच कर लेता हूं, और हकीकत में बेदीन का ईमान और उसकी रास्तबाजी उस आदमी के लिए जिसने बेदीन आदमी पर एतबार किया, ईमान रखा, वो इक्वल हो जाते हैं, वो दोनों यकसानियत के तौर पर हो जाते हैं, लेकिन मसावात के तौर पर वो अपने लिए वही रास्तबाजी रखते हैं जो बेदीन रखता है। ये खुदा ने यहां बताया है हमें, मगर जो शख्स, जो यानी कोई भी, एनीवन, बेदीन रास्तबाज ठहराने वाले पर, जो बेदीन होते हैं उनको बड़े रोज लोग जो रास्तबाज कहते हैं, उनके ठहराने वाले पर, दुनिया के ठहराने वाले पर ईमान ले आते हैं, वो उनकी रास्तबाजी की नहीं जाती है। लेकिन जो लोग उससे मुत्तफिक नहीं होते, खुदा की मसावात और खुदा की यकसानियत में हाजिर होते हैं, वो खुदा के लोग कहलाते हैं, वो खुदा की रास्तबाजी में शामिल होते हैं। जिस तरह बाप ने कहा जॉन चैप्टर 17 में कि मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। छठी आयत, चुनाचा जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाज महसूब करता है, दाऊद भी उसी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक है जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढके गए। अब मुबारक वो लोग होते हैं जो बदकारियों के साथ नहीं मिलते, लेकिन उनको उछालने की बजाय, दूसरों को उसमें शामिल करने की बजाय उनसे अलहदा हो जाते हैं, वो लोग मुबारक कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये तो था पुराने अहदनामे के जमाने में की बात, लेकिन अब यहूदा अक्सरियती के बारे में जानते हैं कि उसकी चाहत थी, उसकी चाहत थी कि वो खुदावंद यीशु का शागिर्द बने और वो उसके साथ चला, और उसकी चाहत ये भी थी कि मैं उन लोगों में मशहूर हूं जो कानून के बानी हैं और अपना रुतबा पाऊं उनमें यीशु को पकड़वा के। ये थी उसकी चाहत। पहले चाहत थी खुदावंद के कामों में शामिल होने की, और फिर उसकी चाहत बदली तो खुदावंद ने उसे नोट फरमाया कि ए यहूदा अक्सरियती, जो तू करना चाहता है अब जा जल्दी से कर। अब वो क्या चाहता था? उसको माल की परवाह नहीं थी भाई और बहनों। जो उसने 29-30 मिसकाल लिए थे यहूदियों से, उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसे अपनी बड़ेपन की परवाह थी कि मैं हैकल में, जबकि खुदा यीशु बाप हैकल में बहुत मशहूर था, मैं भी उसी तरह हैकल में मशहूर हो जाऊं उसको पकड़वा के, और ये कानून दान मुझे
बहुत मुबारक कहें। कुर्बत, कुर्बत की निशानी। चौथा हम देखते हैं, ये तो पहचान हुई। आज हम देखते हैं कि इसी तरह हम लबों से तो खुदा खुदा करते हैं, लेकिन दिल हमारे दूर है। लबों से क्यों? क्योंकि जो जाहिर है वो तो जिस्म से होता है। अगर हम देखें रोमन्स 3 बाब उसकी 5वीं आयत, तो हमें पता चल जाएगा। लिखा है, अगर हमारी नाराजगी खुदा की रास्तबाजी की खूबी को जाहिर करती है तो हम क्या कहें? क्या यह खुदा बेइंसाफ है जो गजब नाज़िल करता है? इसका यह मतलब है कि हमारी नाराजगी, हम रास्ते पे नहीं चल रहे होते और समझते हैं कि खुदा के काम कर रहे हैं, उसकी रास्तबाजी को जाहिर कर रहे हैं, और खुदा बेइंसाफ है कि हम पे खामखा जो है मुसीबतें वो नाजिल करता है। आगे लिखा है, मैं ये बात इंसान के तौर पे कहता हूं, हरगिज नहीं, वरना खुदा क्यों कर दुनिया का इंसाफ करेगा? क्योंकि खुदा की रास्तबाजी के मुताबिक अगर हम रास्तबाज कहलाए जाएंगे तो फिर खुदा जो है वो माफ करेगा। वरना इंसाफ वही होता है कि दो अपोनेंट जो होते हैं वो आपस में मुत्तफिक नहीं होते और उनका जो जज है वो रियलिटी बयान करके उन पर इंसाफ करता है। और अब यहां पे हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान एक बात है कि हम अपनी नाराजगी की वजह, नाराजगी का यह मतलब जो गलत काम करते हैं, वो गलत काम कौन से है? अब खुदा ने कहा है जो कुछ भी करते हो, यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, जो कुछ भी करते हो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। आजकल लोग खुदा के लिए काम नहीं करते, लेकिन खुदा के हुक्मों के लिए और इंसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि पहले खुदा के लिए कुछ करें। जिन इंसान के लिए हम करना चाहते हैं वो शरीयत हमें दी गई है कि ऐसा करो, उन्हीं इंसान के लिए खुदा चाहता है कि रोज खाना देने की बजाय उनको ऐसा सिखा दो, मेरा नाम सिखा दो, ताकि वो मेरे नाम के वसीले से जो है वो बरकत पाए, ना कि अमेरिका के वसीले से बरकत पाए, ना कि किसी और चीज के वसीले से बरकत पाए, बल्कि यीशु के नाम के वसीले से। इसलिए वो लोग जो बताते हैं कि हम रास्तबाज हैं और रास्ते के काम कर रहे हैं, हालांकि वो रास्ते के काम नहीं कर रहे, तो नारास्ती के काम करते हैं और अपने आप को खुदा की रास्तबाजी में शामिल करते हैं। टोटली रॉन्ग। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और दूसरी चीजें आराम से मिलती। हमारा काम इस वक्त यह है कि उसके कामों को अपने अंदर जल्द अज जल्द रख के दुनिया को और जो नहीं कमजोर ईमान है उनको बताएं कि किस तरह इंसाफ होता है, यकसानियत क्या चीज है और मसावत क्या चीज है। लिहाजा इसीलिए खुदा का गजब नाजिल होता है और इसीलिए जजमेंट रखी गई है कि सच्चे कौन है, और जो काम सच्चे बताकर खुदा को रोज बरोज सूली चढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी इकरार नहीं करते कि वो बचाने वाला है, बल्कि दूसरों के पास जाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि हमें बचाओ। अब देखते हैं इसी तरह यहूदा अक्सर युती ने भी किया। क्या किया? उसने अपने आप को बचाने के लिए यीशु को दे दिया ताकि मैं मारा ना जाऊं। ये थी पहचान और ये थी उसकी कुर्बत। कुर्बत क्या थी? कुर्बत आप जानते हैं, कुर्बत वो चीज है जो बहुत करीब होते हैं। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में जितने अरब में मालिक हैं वो बिल्कुल कॉपी करते हैं जूश लोगों की।
यहूदी लोगों की कॉपी करते हैं। यहूदी लोगों का आज भी वही किरदार है जो अरबियों में हम देखते हैं, क्योंकि हमने अरबी लोगों को देखा है इसलिए उनकी बात करते हैं, हमने ज्यूइश को नहीं देखा। जब से मैं अमेरिका आया हूं भाई और बहनों, मैंने यहूदियों को देखा है कि वही किरदार अदा करते हैं जो अरबी कर रहे हैं। और वो क्या किरदार अदा करते हैं कि उनके खास जो कुर्बत वाले लोग होते हैं, जो उनके फैमिली के लोग होते हैं, वो उसको गाल पर भरोसा देते हैं। जो खास फैमिली के लोग कुर्बत वाले होते हैं वो गाल पर भरोसा देते हैं, और जो उससे दूर होते हैं काहिन, सरदार वगैरह दूसरे तीसरे, वो उसके कद्दे पर भरोसा देते हैं। और जो उससे दूर होते हैं, जिनका लिंक उनसे दूर होता है, यानी वो लोग जो नौकर होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, उनके हाथ पर भरोसा देते हैं। और वो लोग भी होते हैं जो उससे दूर होते हैं, आम पब्लिक, वो सिर्फ हाथ मिलाकर चले जाते हैं या दूर से बाय बाय करते हैं और वो भी उनका जवाब देता है और चले जाते हैं। यही किरदार जो है कुर्बत का, ये यहूदा अक्सर यूती ने अदा किया। क्योंकि हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि यहूदा अक्सर यूती और हम में क्या फर्क है। ये किरदार कुर्बत के लिहाज से वो इतना करीब था कि उसने, कि खुदा बाप ने उसे यह हक दिया था कि तू बहुत करीब है और तू मेरी गाल को चूम सकता है। और उसने निशानी भी यही बताई रोमन्स को कि मैं जिसकी गाल पर भरोसा करूंगा, चूमूंगा, वही यस्सु होगा। वो किसी के पास नहीं गया और सीधा आया और उसने यस्सु को छुआ। इसके दो माने हैं, इसकी भी दो पहचान है। एक ये पहचान कि खुदावंद को पहचान जाए, और अब दूसरों के लिए पहचान कि देखो रोमन, मैं खुदा के कितना करीब हूं कि उसने मुझे हक बख्शा है कि मैं उसकी गाल को चूमूं। इसलिए मैं बड़ा एक मजहबी आदमी हूं, जो एक मजहबी आदमी के साथ मुब्तला हूं। यह तो था उसका फांसी से पहले का किरदार। हम अब देखते हैं कि हम इस किरदार को कितना ज्यादा अपनाते हैं। मैं अपने किरदार को इस तरह रिजेम्बलेंस दे के कैसे अपनाता हूं। मैं बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करता हूं, मैं बड़ा अच्छा अच्छा करता हूं, लेकिन इसी तरह जिस तरह यहूदा अक्सर पकड़वाने के लिए उसने किया, बीच में मैं उसके पीठ पे छुरा खोपने के लिए उससे करता हूं, या अपना मकसद हल करने के लिए करता हूं, या बड़ा लीडर बनने के लिए करता हूं, या कुछ ना कुछ मुझ में अपना लालच है जो मैं उससे करता हूं। कुर्बत भी मैंने इसीलिए पाई, खुद बुलाता हूं, उनको जलील करता हूं, और जलील करने के बाद अपनी मशहूरी पैदा कर लेता हूं। ये तो था फांसी के पहले। अब देखते हैं कि फांसी के बाद या खुदा को पकड़वाने के बाद उसके दिल में क्या है, और हम उसके साथ किस तरह मुंसलिक हैं। भाई और बहनों, आप जानते हैं वो किस्सा कि यहूदा अक्सरियुती ने जब जीसस को पकड़वा लिया तो उसको बड़ा दुख हुआ, वो पछताया और वापस उस रास्तबाजी में आया जो उसको वाजिब था करना। वो उसको वाजिब था। क्यों? जब खुदा को वाजिब था कि वो बदकारों के लिए जान दे और उनकी जात का सबब बने, तो इसलिए उसने अफसोस किया और यह चाहा कि यह दुनिया का नजात देने वाला आज मेरी वजह से जो है वो मारा जाएगा। और जब उसे पता चल गया कि इसको सूली देने लगे हैं, तो वो क्या किया, उसने खुदा के लिए जान दी। उसने खुदा को सूली पे चढ़ने से पहले जान दी ताकि मैं उनके दुख ना देख सकूं। और भाइयों और बहनों, मैं सच बताता हूं कि उसके जान देने पर वो रास्तबाज गिना गया।
کیوں؟ اسی طرح وہی دو ڈاکو جو دائیں طرف تھا وہ راست باز گنا گیا تھا کہ صرف اس نے اس پر رحم کیا تھا. اسی طرح اس کو یہودا اکثریتی کو بھی یہ خیال آیا، اور خیال آنے کے بعد اس نے وہ معافی مانگی، اور نہ صرف اپنی جان کو تکلیف دے بلکہ اپنی جان اس نے انہیں پھانسی دے کر ادا کی. اس کا کفارہ دیا. اس غلطی کا کفارہ دینا ہی اس کی لیے ایک راست بازی ہے. اب ہم پہ آ جائیں، ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم کس طرح کفارہ ادا کرتے ہیں. مجھ پر کوئی الزام لگائے یا مجھے پچھتاوا ہو تو میں اپنے آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتا. میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا. مارنے کی تو بات چھوڑے، میں آپ کو دکھ دینا بھی نہیں چاہتا، اور کسی نہ کسی طریقے سے کنارہ کر جاتا ہوں اور اسے نہیں بولتا. کیوں؟ غلطی تو پھر بھی میری ہے کہ میں نے اس کے ساتھ صحیح انصاف نہیں کیا، اور پھر دوبارہ ایک جو راست بازی خدا کی ہے کہ معاف کرو ایک دوسرے کو اور جا کے معافی مانگو، وہ معافی مانگنے کی بجائے اس سے ہٹ جاتا ہے. خدا کی بھی راست بازی حاصل نہیں کرتا. اپنی راست بازی سے وہ شرمندہ تو ہوتا ہے، لیکن خدا کی راست بازی حاصل کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ یا تو وہ اس نافرمانی سے، اس سے جو جس کو کسی کو بہکایا ہے اس سے ملام اپنے آپ کو کرے، بلکہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور علیحدہ ہو کے اپنا ایک اور ادارہ کھول لیتا ہے، اپنی ایک اور مشن ہو جاتی ہے. میں معافی چاہوں گا، مشنیں کھولنے یا ادارہ کھولنے سے کوئی میں منع نہیں کرتا، یا میں خلاف نہیں ہوں، لیکن خلافت یہ ہے کہ اپنا بننے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے خدا کے اس قانون کو بھول جاتے ہو کہ اپنے آپ میں چھوٹا بنو. بڑا اچھا لکھا ہوا ہے گاسپلز میں کہ عورتوں میں سے پیدا ہونے والا یوحنا سے آج تک کوئی بڑا نہیں ہوا. یسوع نے کہا ہے یہ. لیکن جو خدا کی بادشاہت میں چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بڑا ہے. ہمیں نہ تو خدا کی بادشاہت میں چھوٹا ہونا چاہتا ہوں، علیحدہ ہو جاتا ہوں، اور نہ میں وہ یکسانیت کو اور جو مساوات ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور نہ میرے پاس کوئی اچھے الفاظ ہیں کہ وہ اس انسان کو جو مجھ سے خفا ہے اس کو صحیح حالت بتا سکوں. تو بھائی اور بہنوں، یہ ہم میں جو خامیاں ہیں، یہ ہم یہودا اکثریتی کو تو بہت برا مانتے اور بہت برا جانتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے آپ میں سوچے ہم تو یہودا اکثریتی سے بھی برے ہیں. ہماری تو معافی ہے ہی نہیں، لیکن معافی اس میں ہے کہ برائی کے ساتھ اگر برائی کا بدلہ دو گے تو وہ اور زیادہ برا ہے، اور اگر برائی کے ساتھ ہٹ جاؤ گے تو وہ برا ہے. لیکن برائی والے کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اگر کچھ کردار ادا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے راستی باز گنا جائے گا، کیونکہ خداوند نے بھی اس کا بھی یہی پرپس تھا کہ وہ جسم میں آ کر برائی والوں کو بتائے اور ان کو کمپیل کرے کہ تم ایسا نہیں کرو، جو کہ ہم نے پچھلے دنوں میں متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں دیکھا تھا. تو یہ تھی باتیں یہودا اکثریتی اور ہم میں کیا فرق ہے. ہم اگر یہ کردار ادا کرتے ہیں تو پھر دیکھیں، ورنہ یہودا اکثریتی کو ہمارے لیے ہم اگر اس کے لیے کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو بالکل واجب نہیں ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں 100 گنا پھیلائے. آمین.